So next question, 49 number question is, the terms marginal standing facility rate means MSF, okay, and net demand and time liabilities means NDTL, net demand and time liabilities, sometime appearing in the news are used in the relation to. If you know the MSF is the like the repo rate. It is also the lending rate for the commercial bank, but the difference is that in repo rate bank cannot pledge SLR quota security to get the loan under the RBI, but in MSF the commercial bank are allowed to pledge the SLR quota security to get the loans, okay. And if we talk about the net demand and time liabilities, it is the percentage, or its percentage is also, we know that SLR and CRR bank have to keep, or bank cannot lend. So you can remember that net demand and time liability is the fund, okay. It is the fund under the commercial bank, okay. It is a fund under the commercial bank which is minus the interbank deposit. So if the total fund minus, okay, total fund minus interbank deposit would be net demand and time liability of the bank, okay. So it is the fund, or you can say it is a deposit. It is a deposit under the commercial bank which are done by the public in large, okay. And the percentage of these deposit, around like a 4% of these deposit bank have to keep as a CRR, and the percentage of these deposit around 18% bank have to keep in SLR, and SLR CRR bank have to keep with the RBI, and RBI generally not pay the interest on the CRR, but the SLR means the 18% of net demand and time liabilities, 18% of net demand and time liabilities the bank can invest in the gold, the government securities, and any other securities which approved by the RBI, okay. So SLR, you can understand, it is a one of the form to get the loan to government. It is asked in the question, we will see sometime after, but you should remember that because of the SLR government can get the fund, as the SLR quota fund commercial bank can invest in the government security, okay. So let us see, it is we know that it is related to the banking operation, so option A would be correct. Next is 50. So 50 number question is saying that, 50 number question is saying that in the context of Indian economy, which of the following is or the purpose or objective, you can understand, of statutory reserve requirement. So if we talk about the what are the statutory reserve requirement, so there is a two statutory reserve requirement, that is CRR and SLR, okay. So both these have a statutory backup. If we talk about the CRR, it has statutory backup under the RBI Act, okay. And if we talk about the SLR, it has statutory backup under the Banking Regulation Act, okay, 1949. So they have statutory backup, that's why they call the statutory reserve requirement, okay. Or because why the reserve, because the bank have to keep these fund as a reserve, they cannot lend these fund SLR and CRR to they cannot lend, or they cannot give the loan these fund, okay. So first purpose in this purpose has asked, remember that first is saying that to enable the central bank means RBI, it enable the central bank
to control the amount of advances means loan the banks can create. Of course, it would be correct, as if CRR and SLR increased by the RBI, the bank what can lend it would be decreased, or bank what can make advance it would be decreased. So increasing CRR and SLR decrease the amount of advance that bank can make. So first would be correct. Okay. Second is saying that to make the people deposit with banks safe and liquid, it is not a objective of CRR and SLR. Okay. The third is saying that to prevent the commercial bank from the making excessive profit, it is something like a negative connotation statement form. If there is a profit in the bank, it would be correct and it would be healthy for the large economy like India. So the profit earned by the bank is neither a problem or neither is the objective of the CRR and SLR. So third would be incorrect. Okay. Fourth is saying that to force the banks to have a sufficient vault cash. So first of all, CRR bank cannot keep as their vault cash. It is bank have to keep with the RBI. So it is not the vault case of the commercial bank. And if we talk about the SLR, so the money in SLR quota, bank not keep in the generally all money in the vault case. Even they have to invest in the gold, and they also invest in this money in the government securities. So the vault case is wrong in this scenario. Okay, so fourth would be wrong, so only A would be correct. Okay. Let us see 51 number question. It is saying that if the interest rate is decreased in an economy, it will. If interest rate, just understand interest rate means repo rate. If repo rate decrease or lending rate decrease in economy, it will increase the money supply in the economy. Okay, and increasing money supply will increase the investment. If public has money, it will invest in the government security or corporate bonds. So if they easily can get loan, so they have money, and if they have money, they will invest in the corporate bond, and it will increase the production in the economy. Okay, so first is saying that decrease the consumption expenditure. If there is a decrease in the interest rate or lending rate, public has large money, so it will be increase the consumption in economy, not decrease. So first would be wrong. Second is saying that increase the tax collection of the government of India. It is not necessary to increase in the tax collection if there is a decrease in the lending rate or interest rate. Okay. C is saying that increase the investment expenditure in the economy. Yes, C would be correct. Okay, C would be correct. Fourth is saying that increase the total saving in the economy. It is also not a necessary, and even the public would be invest. Okay, if they invest, so there is not a any you can say it is not necessary to increase in the total saving. Okay, so only C would be correct. If there is a ample money supply or large money supply in the market, it would be increase the investment. Okay, so remember that it can be asked, because as we see that many question is repeated by the RBI. Okay, if we talk about the increase and decrease, about the increase and decrease repo rate, more than 10 question UPSC has asked in this, and from only one question, if you understand that if repo rate increase, the money supply in the market decrease, so you can, and if repo rate decrease by the RBI, it will increase the money supply in the market. If this simple concept you can solve these all questions.
Okay, so please be remember that 52 is saying that ki what is are the facility the beneficiary can get from the service of business correspondent, means bank sathi in branches areas. So bank sathi, you can understand, bank sathi are the representative of the banks. So as in all area bank cannot open their branch, so they will employ the bank sathi, the person who will go in the rural areas or remote areas where bank branch are not available and provide the all banking system. Okay, so it is the bank sathi. Let us understand now. It is saying that it enable the beneficiaries to draw their subsidies and local securities, social security benefits in their village. Of course, the banking service, all the banking service can be provided by the bank sathi as they are connected with the banks. So about the social securities or either the deposit or withdrawal of the money, okay, all this you can say all service this can be provided by the bank sathi at the local or remote levels. Second is saying that it enable the beneficiaries in rural areas to make deposit and withdrawals. Of course, they can make deposit and withdrawal through the bank sathi. So C would be correct in this. Okay. There is no any concept which I need to explain. So this is just if any question come about the bank sathi in the mains or financial inclusion in the mains, you can mention about the bank sathi. Okay, so it is not any concept or there is no any fact, it is a general statement framed by the UPSC. Let us see the 53 number questions. What does venture capital means? Either it is about the venture capital or about the angel investor. Please remember that one thing, that they both provide the capital to invest, capital to startup. Okay, they both provide capital to startup and their motive was to gain the benefits. Okay, to gain the large benefit. If they think that this startup is going to rise in the recent past or going to you can say this startup share will be rise in the recent future, so they will invest that startup and they get the high profit. So they generally provide the capital to startup. So if they provide the capital and if it is about the capital, so it will be generally the long term. Okay, so they invest the long term in any startup to get the long term benefit, you can say. So correct option is this, a long term startup capital provided to new entrepreneurs. Of course, B would be correct. Okay, next is saying that 54 number question, priority sector lending PSL by banks in India constitute the lending to. It is a very important, please be remember that in UPSC 2023 one statement in the MSME question about the priority sector lending. Okay, so you need to remember, not remember the fact ki how much percentage to marginal farmers, how much percent have to provided to the large farmers, but you need to remember that ki the how many sector are in the priority sector lending. Overall you should have the overview of that sectors. Okay, and as we know that the commercial bank have to give the loan about 40% of net demand and time liabilities to the priority sector, or 40% of their total loan to the priority sectors. Okay, in this the include the farmers, okay, and also the medium small industries, cottage industries, okay, and also include the green energy project, okay,
include the beaker section. Okay, these things are included in the priority sector lending. And if we talk about the different types of bank like RRB, small finance bank, okay, so they have different priority sector lending target. If we talk about the RRB, so they have priority sector lending target 75% loan they have to give the in the priority sector areas. So if UPSC asks all type of banks have to give 40% of their total loan 40% of their total loan percentage to the in the priority sector, so it would be wrong, because different types of bank had different target to complete in the priority sector lending. Okay, so agriculture is included, of course, micro small enterprise is included, of course, beaker section included. And please remember that export or exporter, you can say, export credit is also included in the priority sectors. Okay, and education loan is also in the priority sector. Housing is also in this, and social infrastructure, this is all in the priority sector. Okay, so all of the above would be correct. Next question is saying that 55 number, which of the following grants and grant direct credit assistance to rural household? Which of the following grant direct credit assistance to the, please I want to do one correction. So you can there say that which of the following grant direct credit assistance to the rural household, or which of the following bank, you can say, give direct credit to the rural household. Okay, so if we talk about the RRB, just we have seen that RRB give that direct credit to the banks, and direct credit to the rural up to the 75% of their total loans, so it would be correct. Second is saying that National Bank for Agriculture Rural Development, NABARD. So if you know the basic of NABARD, you know that the NABARD have just refinancing activities. Okay, it cannot give the direct loan to rural household or any sector. Of course, NABARD has an objective and purpose to in the rural development, but it gives the refinancing activities. Refinancing means the NABARD will give the loan to the banks like RRB, like any cooperative bank, like a commercial bank, and these banks provide the loan to the rural household. Okay, so this is the activities of the NABARD. So second would be correct. Third is saying the land development banks. Yes, land development banks at the local level, these are the bank at the local level, and remember that they provide the long term credit. Okay, long term credit. So yes, they provide the long term credit to the rural household. So 1 and 3rd would be correct. So in this 1 and 3rd would be correct. If we talk about the NABARD is an important section. So it is a statutory, okay, statutory body. Okay, and it is formed the statutory body established in 1982. Okay, please remember it is a statutory body established in 1982, and NABARD established is you can just say that NABARD replaced, or whatever the before the NABARD there was the some department under the RBI which were about the rural development. These department transferred to the NABARD, and then NABARD formed. Okay, so these department combined, and the combined form is called the NABARD, and NABARD is the statutory body, and it is formed in 1982, and it is all India financial institution. Okay, there is 5 all India financial institution. Do comment if you know. I will tell you 3. So first is NABARD, second is Export Import Bank, third is SIDBI, and
third is SIDBI, and fourth is National Bank for Infrastructure Development, and fifth is National Housing Bank. Okay, so all I had told you, these are five are the all India financial institution. All India financial institution means they generally they are made from the parliamentary act. Okay, so they are made by the parliament. Okay, now if we talk about the NABARD, so NABARD have also the supervisory function or supervisory, you can say, function over the cooperative bank and RRB, regional rural bank. So it has also supervisory and regulating function. And if we talk about the NABARD more, the KCC, the Kisan Credit Card in 1998 issued by the NABARD with help of RBI. Okay, so as much you need to remember. The 56 number, let us see. It is saying that the Reserve Bank of India regulates the commercial bank in matters of. So if we talk about the regulation of Reserve Bank India over the commercial bank, so it has power to regulate the liquidity of asset, of course, through the SLR. Okay, through the SLR it can decrease or increase the liquidity of the commercial bank. Branch expansion, of course, under the Banking Regulation Act, RBI has complete power to stop the any bank to in the branch expansion or force the any you can say any bank to open the branch in the rural areas. Okay, okay. And third is saying then merger of the banks. Of course, in banking, under the Banking Regulation Act, RBI also have power to merge any banks. Okay, then the winding up means closing of banks. Yes, RBI also have this power. So 1, 2 and 3, 4 all are correct. Next 57 number question. 57 number question is saying that an increase in the bank rate generally indicates the, इसका मतलब कि अगर बैंक रेट में इंक्रीमेंट हो रहा है तो व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दैट. So first is saying that कि market rate of interest is likely to fall. If you just see that if repo rate is increasing means lending rate is increasing. Okay, if lending rate is increasing the market rate would be increased, not fall. So first would be incorrect. Okay, and B is saying this central bank is no longer making loans to commercial bank. It is not, it is completely wrong. Increasing and decreasing in the bank rate or repo rate, there is not a means that central bank not give the loans. It means that the loan conducted by the RBI would be at high interest. Okay, ज़्यादा interest charge करेगा RBI. So B would be wrong. A would be also wrong. C is saying that central bank is following an easy monetary policy. If there is an increase in the bank rate means central bank is following the tight monetary policy, contractionary monetary policy, and central bank want to reduce money supply in the market. Okay, and central bank want lending rate would be high, so money supply would decrease in the market and generally at the time of controlling the inflation. Okay, so C would be wrong. Saying that central bank is following tight monetary policy. Of course, अगर यहाँ पर बैंक रेट इंक्रीज हो रहा है and just remember that this bank rate with the repo rate to solve this question. If there is an increase in the repo rate means central bank is following the tight monetary policy and want to decrease money supply in the market, so the central bank can keep the inflation 2 to 6% of at CPI all India level. Okay, so D would be correct. Let us see 58 number question.
58 number question is saying that consider the following liquid asset. Liquid asset means asset which have highest liquidity or the asset you can spend any time. इतनी लिक्विडिटी है कि जब आप चाहो तभी स्पेंड कर सकते हो, वो सबसे ज़्यादा लिक्विड होगी. एंड द एसेट you have to wait for the expend, you have to wait for the spend, that asset would be less liquid. Okay, just remember this concept, then you will solve this. So fourth saying that currency, just remember that if there is a currency means in your hand, currency is in your hand. So if this is a currency in your hand, you can the more मतलब it is the more liquid asset and you can invest as मतलब बहुत ही जल्दी you can invest very much fast. Okay, very fast. So fourth is the most liquid what you can have. Okay, fourth is the most liquid, currency is the most liquid what you can have. And third is saying that saving deposit, just remember saving deposit, it is means you have deposit in the bank account for the interest rate or for to earn the interest rate. So there would be any condition to withdraw the money, or if there is not condition, it saving deposit would be less liquid than the demand deposit. Demand deposit means any time you can visit the branch and ATM and you can have the cash from your account. But saving deposit may have any, you can say there may have any you can say regulation like that कि आप इतने से ज़्यादा नहीं withdraw कर सकते, and something like that there may have regulation. So just remember that demand deposit is more liquid than the saving deposit. And so after the 4 would be 1 and 1 after would be 3. So 4, 1, 3 would be in D, so 2. And if we talk about the time deposit, means you have deposit in the bank and your deposit is locked, मतलब आपका टाइम पीरियड के लिए ये लॉक्ड हो चुका है कुछ टाइम पीरियड के लिए. एंड इन टाइम डिपॉजिट यू जनरली गेट हाई इंटरेस्ट रेट देन द सेविंग डिपॉजिट. ओके, and if you want to withdraw your money before the maturity period in the time deposit, so you may have face the penalty. Okay, so you can face the penalty rate as it is the amount which are locked by the banks, and you will get high interest rate like a 2-3 years it can locking period. Okay, so the most less you can say liquid asset is the time deposit with banks. So D would be correct. 59 number question, just look at it, is saying that in the context of Indian economy open market operation 2023 OPSC has saying that it has about the open market operation question. And in that question UPSC said that during the means you know that exchange rate the RBI has to buy and sell the dollar in the market, and that activities is called, मतलब किसके अंडर आता है. You can look at out the 2023 question. So this question is same as मतलब somehow about are the same. So 59 में कह रहा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू, तो हम जानते हैं कि OMO जो होता है it is the buying and selling of the government security by the RBI to increase and decrease in the money supply in the market. Okay, so that we call the open market operation. So this should be correct. Purchase and sell government securities by the RBI. And if we talk about the operation twist, so remember that operation twist are the special type of open market operation, but मतलब operation twist objective is not to increase and decrease in the money supply in the market, but its objective is to make the loan
easy for the corporate and government sector. Okay, make the loan interest rate easy for the corporate and government sector. It is the objective of the operation twist. So C would be correct in this. 60 is saying that consider the following statements. First is inflation benefits debtors. The inflation benefits debtors means loan taker. So of course if there is a inflation, it would be benefit the loan takers. Okay, how? Just see the कि A and B, A has given 100 rupees to B, okay, and at the interest rate of 6%, okay, and that time inflation was 3%. So B, the real interest rate what A will get 3%, okay, 3%. But you just see that when B return the amount of 100%, 100 rupees, sorry, जब B ने 100 रुपये रिटर्न किया A को, that time inflation was you can say 12%. Inflation was 12%. So what the real interest rate ये get 6 minus 12 minus 6% is real interest rate, and so the benefit what get by the B. So here B are at the beneficial stage. And second में आप कैसे समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए जब A ने B को 100 रुपये दिए, तो ये मानो कि उस समय इन्फ्लेशन इतना कम था कि ये ने 1 kg पटेटो खरीद लिया, बट जब B ने ये को रिटर्न किया तो अब जो 1 kg पटेटो का दाम है इन्फ्लेशन के कारण 200 रुपये हो गया, ठीक है। तो अब ये तो 100 ही किया, तो अब ये कितना परचेस कर सकता है पोटैटो, 500 ग्राम ओनली। तो यहाँ पर ये बेनिफिशियल स्टेज पे आया ना, क्योंकि उसने तो 1 kg पोटैटो खरीद लिया था उस पर। सो फर्स्ट वुड बी करेक्ट। सेकेंड इज सेइंग दैट कि इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर्स, ऑफकोर्स sorry inflation benefit the bond holders. So if as we know that ki bond holder get the fixed interest or fixed coupon rate. So if they get the fixed interest rate, either there is a inflation, so that time they will also get the fixed interest rate, चाहे inflation है मार्केट में या डिफ्लेशन है, वो केवल फिक्स इंटरेस्ट रेट उनको मिलेगा। तो अगर मान लीजिए कि बॉन्ड के मतलब इन्वेस्टिंग टाइम 6% उन्होंने पे करने को कहा, बट फ्यूचर में अगर इन्फ्लेशन 12% हो गया तो कितना माइनस हो गया, मतलब -6% उनको रियल बॉन्ड होल्डर को -6%, मतलब उसको जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो घाटे में जा रहा है, उसका जो परचेसिंग पावर है वो 6% डिक्रीज हो रही है पर ईयर, ओके। तो यहाँ पर बॉन्ड होल्डर माइनस में जा रहा है, समझ गए। सो बॉन्ड होल्डर को नुकसान होता है इन्फ्लेशन के टाइम, बॉन्ड होल्डर लूजेस हिज मनी ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, ओके। सो फर्स्ट वुड बी ओनली करेक्ट। और इफ़ यू सी द ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन पीपल जनरली सोल्ड द बॉन्ड एंड ट्राई टू परचेस द शेयर, ओके। क्यों? because during the inflation the production increase in the economy and the share pay high dividend, okay। शेयर पे हाई डिविडेंड, हमको पता है कि शेयर क्या होता है। शेयर मतलब अगर कंपनी बेनिफिट्स में है, प्रॉफिट कमा रही, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर लॉस में गई तो आपको कम मिलेगा, या अगर कंपनी अगर प्रोडक्शन नहीं कर रही, डिमांड नहीं है इकॉनमी में, तो शेयर पर आपको कम इंटरेस्ट मिलता है, कम डिविडेंड मिलता है, उसको कहते हैं हम। बट बॉन्ड पे जो होता है वो फिक्स होता है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे जनरली क्या होता है, लोग डिमांड कर रहे होते हैं एंड कंपनी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही होती है, तो शेयर पे कंपनी का प्रॉफिट होता है, तो शेयर पे वो ज़्यादा डिविडेंड देते हैं। तो अब आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो ओनली वन ये वुड बी करेक्ट। 61 इज सेइंग दैट which of the following is likely to be the most inflationary its effect,
मोस्ट, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं एक बार। तो मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इफेक्ट्स इज द व्हेन द, आप कह सकते हैं कि जब कोई नई मनी क्रिएट की जाए, नई मनी क्रिएट सर मतलब जितनी मनी इकॉनमी में है, जैसे मान लीजिए कि पहले 100 रुपये इकॉनमी में था, ठीक है, तो 100 रुपये का प्रोडक्ट भी था इकॉनमी में और काम चल रहा था, इन्फ्लेशन जो था वो कम था क्योंकि प्रोडक्ट जितना था उतना ही मनी थी इकॉनमी में। अब मान लीजिए 200 रुपये आ गए इकॉनमी में, नाउ द प्रोडक्ट, इट इज़ नॉट कि तुरंत आप एग्रीकल्चर कर लोगे, तुरंत आप मैन्युफैक्चरिंग कर लोगे और तुरंत आप 200 तक इंक्रीज कर लोगे, ठीक है। तो अब जब 200 आ गया इकॉनमी में, तो अभी भी आपका प्रोडक्ट तो 100 ही रहने वाला है, या मान लीजिए 110 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आउटपुट। तो ये बहुत इन्फ्लेशनरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर प्राइस जो प्रोडक्ट की होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि आपने नई मनी इकॉनमी में लाकर रख दिया जो कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, जो प्रोडक्ट है वो उस अकॉर्डिंग नहीं इंक्रीज हो सकता एज फास्ट। ओके, तो रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेप्ट, इट इज़ just what money taken by the government or corporate sector, it is a repayment, so there is no increment in the money. Okay, the borrowing from the public to finance budget deficit, it is also no increment in the money in the overall economy. Borrowing from the bonds banks to the finance a budget deficit, it is also not a you can say increase in the money in the economy. Okay, it is the same money which transfer from the bank to public or public to bank and public to government, so same money is transferring from the one sector to other sector, there is not increase in the money. Okay, or so this is saying that creating new money to finance budget deficit. yes, अगर आप नई मनी मार्केट में ले आ रहे हो to finance the budget deficit, it would be the मोस्ट पर यहाँ पर जो की है वर्ड है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत ज़्यादा आपका मनी जो इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट पड़ेगा इस पर, तो डी वुड बी करेक्ट। 62 इज सेइंग दैट कि सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी देयर विल बी। आप ऐसा समझिए, ये कह रहा है कि सप्लाई ऑफ ओनियन सेम है, मतलब सप्लाई सेम है, बट डिमांड ऑफ ओनियन इंक्रीज हो गया, तो क्या होगा, ओनियन की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी और इसी को हम इन्फ्लेशन कह देंगे, ठीक है। तो कहते हैं अ फॉल इन द प्राइस, फॉल नहीं इंक्रीज होगी, एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है, ठीक है। 1 मिनट, फर्स्ट इज सेइंग दैट कि अ फॉल इन द प्राइस, तो फॉल नहीं होगी, प्राइस जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगा जो कम होगा, ठीक है। फिर सेकेंड इज सेइंग दैट एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कॉस्ट, यही तो इफेक्ट होगा। आप जैसे मानिए कि रेट ऑफ मनी के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा और ऑनियन के केस में ऑनियन की प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होने का मतलब क्या, मनी जो आपको मिलनी है मार्केट से उसका इंटरेस्ट, उसका लेंडिंग रेट ज़्यादा हो गया, मनी ज़्यादा महंगी हो गई मार्केट में, ओके, उसको लाने के लिए। सो यस, बी वुड बी करेक्ट। Okay, so bank lending rate would be increase if there is a more demand for the loan. Simple term, bank lending rate would be increase if there is a more demand for the money or more demand for the loan by the public. So bank generally increase the lending rate, and as the bank increase the lending rate, the public will postpone their loan requirement. Okay, so B would be correct. सी सेइंग एट डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं इंक्रीज होगा तो डिक्रीज कैसे हो सकता है। डी सेइंग दैट कि इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जस्ट सी दैट कि अगर लोन ज़्यादा महंगा हो रहा है तो इससे तो जो एम्प्लॉयमेंट इनकम, आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट लेवल जो होगा वो तो डिक्रीज होने के चांस ज़्यादा है, इंक्रीज की तो कोई बात ही नहीं है। तो डी वुड बी करेक्ट, इनकरेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट मतलब गलत होगा, तो only B are correct. 63 is saying that, sorry, 63 the basic aim of lead bank scheme, same thing ना, यही क्वेश्चन पहले भी आया था and same question now repeated. Okay, I think 2018 the same question about the what we the
area approach. So the lead scheme in this also there is the you can say area approach system कि एक एरिया एक बैंक को दे दिया जाएगा एंड दे विल बी प्रमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इन दैट एरिया. तो एरिया विल बी असाइंड टू एवरी बैंक अंडर द लीड बैंक स्कीम्स. द एरिया which have low banking penetration, which have either no banking or the area would be remote areas. So all bank would be assigned to one area, and that area the bank will be open their branch, open their financial security scheme, and they will provide the all banking system to that remoteness peoples. Okay. So ये कहते हैं big bank should try to open office in the each district. ये तो नहीं है हमारा. ओके फिर से भी कहीं देयर शुड बी स्टिफ कंपटीशन अमंग द वेरियस नेशनलाइज्ड बैंक्स. तो ये भी नहीं है हमारा ऑब्जेक्टिव. 6 इंडिविजुअल बैंक शुड अडॉप्ट पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट यस फॉर इंटेंसिव डेवलपमेंट. ऑफ कोर्स एक डिस्ट्रिक्ट सभी लोग जो होंगे बैंक जो होंगे वो अडॉप्ट कर लेंगे एंड दे विल बी प्रमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन and development in their district. So this is the about the lead bank scheme, and remember that this scheme is around 1960s, not is a new scheme. Okay, so C would be correct. ये रिपीटेड क्वेश्चन है और सेम क्वेश्चन मतलब इसमें कोई नया पॉइंट ऐड करके नहीं रिपीट किया है, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है. 2018 में जो ऑप्शन था वो हमारा क्या था, क्वेश्चन था, एंड अब जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन है. सिंपल सी भाई, ठीक है. नाउ 64 नंबर क्वेश्चन. 64 कह रहा है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एज बैंकर्स बैंक. सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन. ओके. व्हेन द यूपीएससी आस्क अबाउट द लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, द यूपीएससी वांट टू आस्क द सेम थिंग, सेम कॉन्सेप्ट. लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब आई थिंक इन 2017 के अराउंड. सी द पेपर, हमने पहले डिस्कस कर लिया है. लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब द आरबीआई जनरली प्रोवाइड द बैंक क्रेडिट इन द टाइम ऑफ लिक्विडिटी क्राइसिस व्हेन द बैंक हैज़ नो कैपेसिटी और नो वन वांट टू प्रोवाइड द कैपिटल टू द बैंक. द आरबीआई विल बी हेल्प टू द बैंक एज अ बिग ब्रदर्स. ओके. तो यहाँ पर कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वुड इम्प्लाई उसका जो बैंकर्स ऑफ बैंक है उसका मीनिंग क्या होता है या कि उसके अंडर उसको क्या है. तो ये कह रहा है फर्स्ट में देखिए कि अदर बैंक रिटेन देयर डिपॉजिट विद द आरबीआई. ऑफ कोर्स सीआरआर कुछ परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट दे रिटेन, और आइदर बी टॉक अबाउट द रिवर्स रेपो रेट. ओके. तो यस फर्स्ट इज करेक्ट. द आरबीआई लेंड्स फंड्स टू द कमर्शियल बैंक इन टाइम्स ऑफ नीड. लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. This is the same question asked by the UPSC in the second terminology used by the UPSC, but that were the same. तो 1 and 2 are correct. फिर इसमें क्या देखिए थर्ड बोल रहा है कि द आरबीआई एडवाइज द कमर्शियल बैंक ऑन मॉनेटरी मैटर्स. ऑफ कोर्स टाइम टू टाइम आरबीआई एडवाइस करता है. आपको पता होगा कैपिटल एडुकेसी रेशियो, आइदर द एनपीए के मैटर में एडवाइस दे, इधर द ब्रांच एक्सपेंशन कि आप 25% ब्रांच रूरल एरियाज में ओपन कीजिए. तो इन ऑल मैटर आरबीआई एडवाइज द कमर्शियल बैंक. तो इन दिस डी वुड बी करेक्ट. इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, बस फंक्शन ऑफ द आरबीआई पता होना चाहिए, जो हमने इसी वीडियो में आप जब स्टार्टिंग में देखेंगे बहुत ही डिटेल में कवर कर लिया है. तो जितना हमने कवर कर लिया उसको फिर से एक ही वीडियो में 4 बार रिपीट करना आई डोंट थिंक इट वुड बी गुड. ओके. तो 65 नंबर क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि which of the following measure would result in increase in the money supply in the economy. सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट कि मनी सप्लाई मार्केट में कब इंक्रीज होगी. फर्स्ट देखिए यहाँ पर परचेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. यस, अगर मान लीजिए जो पब्लिक के बाद 100 रुपये की गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी उसे से तो वो कुछ खरीद नहीं सकता था. अब आरबीआई आया एंड आरबीआई सेज कि प्लीज़ गिव दैट गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू मी, नाउ आई विल पे द 100 रुपीज़ टू यू.
now public has 100 rupees, now he can demand for the goods and service, so it will be increase the money supply to the public or market in economy. Okay, so first would be correct. Second is a deposit of currency in commercial bank by the public. If public has 100 rupees and this money going to the bank, it would be decrease the money supply in the market, neither no increase. Okay, so आप कह सकते हैं कि ये डिक्रीज करेगा, नॉट इंक्रीज. सो टू वुड बी रॉन्ग, फर्स्ट वुड बी करेक्ट. थर्ड कह रहा है कि बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक. अगर गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से बोरो कर रही है तो इस केस में आप कह सकते हैं कि जो मनी सप्लाई, क्योंकि देखिए यहाँ पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो करेगी और फिर उस अमाउंट को तो इन्वेस्ट भी करेगी ना, और इन्वेस्ट जब करेगी तो अल्टीमेटली वो मनी पब्लिक के पास पहुँचेगा. ओके, तो ये मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया. तो 1 and 3 आर करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट. ओके, फिर फोर्थ भी देख लीजिए, यहाँ पर है कह रहा है कि सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक. इफ RBI इज सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू द पब्लिक, it will decrease the money supply in the economy. Okay, as the money is transferring from the public to the RBI. So 4 would be wrong. So 1 and 3 only would be correct in this scenario. 66 number question. Under which of the following circumstances capital gains arise? Capital gains means you have buy the one house. Okay, bought one house at the you can say 1000. आपने 1000 में एक घर खरीदा 2017 में. अब 2018 में उस हाउस का प्राइस हो गया आपके मान लो 50,000. ओके, तो ये व्हाट यू हैव गेन द कैपिटल, मतलब आपके जो यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हुआ 40,000, इट इज़ कैपिटल गेन फॉर यू. ओके, सो दिस इज द सिनेरियो ऑफ कैपिटल गेन. फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है कि व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द सेल ऑफ प्रोडक्ट. भाई सेल ऑफ प्रोडक्ट में कैपिटल गेन थोड़ी होता है. मान लीजिए कि 1 रुपये चॉकलेट थी पहले और 10 चॉकलेट भी बिकती थी. अब जो है तो 10 रुपये कमा लेता था वो, ठीक है. अब जो है वो रुपये चॉकलेट तो सेम ही है, 1 ही रुपये है. अब 20 बिकती है तो वो 20 रुपये कमा लेता है. बट यहाँ पर कैपिटल थोड़ी ना गेन हुआ है, यहाँ पर तो सेल से पैसे आए हुए हैं ना, ये तो सेल से गेन हुआ है. तो ये तो कोई सिस्टम ही नहीं है. फिर कह रहा है कि व्हेन देयर इज अ नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ओन्ड. यस, आपने घर का प्राइस तो खुद से तो कोई इंक्रीज किया ही नहीं है कि आपने जाकर सबको बोला कि भाई मेरा घर का प्राइस 10,000 से 50,000 कर दीजिए. वो तो नेचुरल इंक्रीज हुआ है ना, मार्केट लेड इंक्रीमेंट है. तो 2 वुड बी करेक्ट. फिर कह रहे व्हेन यू परचेस अ पेंटिंग एंड देयर इज अ ग्रोथ इन इट्स वैल्यू ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स पॉपुलरिटी. ऑफ कोर्स 2 and 3 वुड बी करेक्ट. आपने कोई पेंटिंग खरीदी 100 रुपये की, बाद में पता चला कि वो पेंटिंग तो सबसे बेस्ट थी, ठीक है. तो अब वो पब्लिक में क्रेज बन गया कि वो पेंटिंग अब 100 बिलियन का देंगे. तो ये तो आप मतलब कोई आपने तो इन्वेस्ट केवल 100 किया था, बाकी जो बढ़ा है वो तो आपका कैपिटल गेन ही हुआ है ना. वो तो इस केस में तभी गवर्नमेंट कहती है कि वी नीड और वी वांट कैपिटल गेन टैक्स बिकॉज यू डू नॉट डन एनी वर्क टू इंक्रीज दिस प्राइज. इट इज़ अ मार्केट लेड इंक्रीमेंट इन द प्राइज. तो जब तुमने कोई काम नहीं किया तो आप कितना खा लोगे, थोड़ा हमको भी खिला दो. तो यही गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है. ओके, तो 67 नंबर, द लोअरिंग ऑफ बैंक रेट. सेम क्वेश्चन में कितनी बार लोअरिंग ऑफ बैंक रेट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीड्स टू. अगर बैंक रेट जो है वो लोअर हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा. हमको पता है कि जब बैंक रेट कम होगा तो जो मनी सप्लाई है, जो लैंडिंग रेट है वो कम हो जाएगा एंड मनी सप्लाई जो मार्केट में है वो इंक्रीज हो जाएगा. सो
ये वुड बी करेक्ट। और मैंने आपको बताया कि बैंक रेट के टाइम पर आप रेपो रेट सोचिया कीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट और मोर मनी इन द मार्केट दैट बी कॉल द मनी सप्लाई इन द मार्केट वुड बी इंक्रीज। ओके, और एक बात याद, अभी इसी पे क्वेश्चन क्या था, अभी आई थिंक 10 मिनट पहले हमने सॉल्व किया कि लोअरिंग ऑफ द बैंक रेट आल्सो इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। हाउ, क्योंकि मनी सब, जब मनी होगी पब्लिक के पास तभी तो वो इन्वेस्ट करेगा। नाउ इन दिस सिनेरियो द मनी इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम द बैंक टू द पब्लिक, नाउ द पब्लिक कैन इन्वेस्ट इन द लार्ज सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर। ओके, तो 1 वुड बी करेक्ट, ये आई मीन 68 is saying that why is the offering of teaser loan, आप teaser loan means housing loan, you can understand housing loan, okay, या teaser loan by commercial bank a cause of economic concern। और इस टीजर लोन में क्या प्रॉब्लम, हाउसिंग लोन ही होता है बट इसको टीजर लोन इसलिए कहते हैं बिकॉज इन द टीजर लोन सिनेरियो द इंटरेस्ट रेट इन द इनिशियल फेज वुड बी लो, okay, like 1%, but in the future or with the time it would be increased like a 2, 4, 8. So with the time the interest rate in the housing increase, okay, so what you have taken on the loan, so that's why called the teaser loan, they have great possibility to fail because loan interest rate आप डे बाई ईयर बाई ईयर आप इंक्रीज कर रहे हो तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सो दैट वुड बी कंसर्न अबाउट द टीजर लोन। अब देखते हैं, फर्स्ट कह रहा है कि द टीजर लोन आर कंसिडर टू बी एन एस्पेक्ट ऑफ सब प्राइम लेंडिंग एंड बैंक में एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ डिफॉल्टर इन फ्यूचर। ऑफकोर्स हो सकता है कि फ्यूचर में वो लोन पे ना कर पाए और बैंक का वो एनपीए कोटा में आ जाए। तो 68 का फर्स्ट तो सही है। सेकेंड से कह रहा है कि ओके, सब प्राइम लेंडिंग मतलब वो लोन, ये भी समझ लीजिए, वो लोन जिस पे जो लोन टेकर है या जो डेप्टर है वो आपको डे मतलब ईयर बाय ईयर आपको या टाइम टू टाइम आपका इंटरेस्ट रेट पे नहीं कर रहा है बैंक को, तो वो लोन अब सब प्राइम हो गया, आउटस्टैंडिंग नहीं रहा, सब प्राइम हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट वुड बी रॉन्ग। इन इंडिया द टीजर लोन आर मोस्टली गिवन इन एक्सपीरियंस इंटरप्रेन्योरशिप, मैंने बताया हाउसिंग में दिया जाता है, तो यहाँ पर इन एक्सपीरियंस की तो बात ही नहीं हुई, तो 2 वुड बी रॉन्ग, फर्स्ट वुड बी करेक्ट ओनली। ठीक है, ये वुड बी ओनली करेक्ट। 69 ये कह रहा है कि माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस टू पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप्स। माइक्रो फाइनेंस मतलब कह रहा है कि इट इज़ जस्ट फाइनेंशियल सर्विस टू प्रोवाइडिंग टू द लो इनकम पीपल्स और लोन प्रोवाइडिंग टू द लो इनकम पीपल्स। This include both the consumers and self-employed. The services rendered under the microfinance is are. So कौन कौन से माइक्रो फाइनेंस से माइक्रो क्रेडिट में आते हैं? So credit facility of course it is include the in the microfinance. Okay, 1 minute. So it is also it include the credit facility include the microfinance. Saving facility of course microfinance activities ही है। इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ ये भी माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज़ है। फंड ट्रांसफ़र दिस इज आल्सो। तो माइक्रो फाइनेंस मतलब यू आर प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज टू द लो इनकम एंड यू कैन से रूरल हाउस होल्ड पीपल्स और इंटरप्रेन्योर्स। सो ऑल फैसिलिटी लाइक अ क्रेडिट फैसिलिटीज, सेविंग, इंश्योरेंस, फंड ट्रांसफ़र फैसिलिटीज, ऑल दिस फाइनेंसिंग सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग टू पीपल्स और लो इनकम group. So this is called the microfinance. Remember that D would be correct. Okay. 70 is saying that a rapid increase in the rate of inflation is sometime attributed to the base effect. Base effect मतलब पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए 100 पहले था, उसको जब आपने 20 से डिवाइड किया तो आपको कितना मिलेगा? 25। ओके, तो यहाँ पर आपको 5 आएगा। बट आप मान लीजिए सेम 100 ही है, बट अब आपको 5 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा? 20। तो ये डिफरेंस क्यों आया कि पहले आपको 5 मिला था अब 20 मिला, मतलब ऑलमोस्ट 15
डिफरेंस, ये आया बिकॉज ऑफ यहाँ पर आपने डिक्रीज कर दिया, बेस को डिक्रीज कर दिया, तो यही कहलाता है आपका बेस इफेक्ट। ओके, तो बेस इफेक्ट अगर आप मान लीजिए कि आपकी जीडीपी, अगर आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हो लाइक इन लास्ट ईयर, तो ये शो करता है कि आपकी जीडीपी इंक्रीज कितने हुई लास्ट ईयर के जीडीपी पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कि लास्ट ईयर की जीडीपी 20 थी और आपने इस ईयर जीडीपी आप मान लीजिए 100 कर लिया, तो स्पेशली आपकी जीडीपी 20 इन द 5 टाइम्स ज़्यादा ग्रो हो गई। ठीक है, 5 टाइम्स ज़्यादा ग्रो हो गई। बट आप यहाँ पर समझिए कि अगर आपकी जीडीपी जो थी वो आपने मतलब पहले भी आपकी कितनी थी 90 रुपीज़ थी और अब आपने 100 कर लिया। ओके, 100 कर लिया तो स्पेशली आपका कितना अराउंड मतलब आप कह सकते हैं कि 1 पॉइंट समथिंग % आपने टाइम आपने केवल ग्रो किया है। ठीक है, तो यही आपका बेस इफेक्ट है। ये आपकी जीडीपी कैलकुलेशन, प्राइस इन्फ्लेशन कैलकुलेशन सबको इफेक्ट करता है। तो बेस इफेक्ट जैसे होगा वैसे आपका इन्फ्लुएंस होगा। तो फर्स्ट कह रहा है कि इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ड्रास्टिक डिफिशियंसी इन द सप्लाई, ये तो है ही नहीं। फिर इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सर्ज इन द डिमांड ड्यू टू रैपिड इनकम ग्रोथ, ये भी नहीं है। फिर कह रहे हैं दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ प्रीवियस ईयर, येस इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट। ऑफ कोर्स आप प्रीवियस ईयर के इन्फ्लेशन से इस ईयर का इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रहे हो, उसको बेस ले रहे हो प्रीवियस ईयर का, तो ये उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही ना कि कितना प्रीवियस ईयर में था और अब कितना हो गया। सो दैट वुड बी करेक्ट। बेस इफेक्ट यही होता है। ठीक है, जो बेस के चेंज होने से इफेक्ट आ जाए उसी को बेस इफेक्ट कहते हैं। ओके, आई थिंक आप समझ चुके हैं। ओके, तो आई थिंक आप बेस इफेक्ट समझ चुके होंगे, बट एक बार फिर से ट्राई कर ही लेते हैं प्राइस लेवल को लेकर। आप मान लीजिए कि जो पहले एक मान लीजिए ये चॉकलेट था वो 2017 में कितने रुपए का था, 10 रुपये का था। ठीक है, 2018 में वो हो गया आपका 15 रुपये का, तो प्राइस में इंक्रीज कितना आया, 5 रुपये, 5 रुपये। ठीक है, 5 रुपये इंक्रीज है। अब आप बेस ये लेंगे 2017 का, अगर आपको इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना है कि कितना 2018 में इंक्रीज हुआ 2017 से, तो 10 रुपये था। ठीक है, इंटू 100। ओके, तो यहाँ पर 10 इंटू 10 तो 10 आ जाएगा यहाँ पर, और 10 फिफ्थ जा 50, तो 50% आपका जो इन्फ्लेशन है वो 50% इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर से। ठीक है, बट आप अभी यहाँ पर समझिए 1 मिनट, आप समझिए पहले जो 2017 में 10 था, अब आपका केवल 2011 में और 2018 में 11 रुपये हो गए। ठीक है, तो आपका इंक्रीमेंट कितना आया, 1 रुपये का आया। कितने पे, 10 पे, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 10 यहाँ पर हो जाएगा, ओनली 10% इंक्रीज। तो पहले 50% था, अब 10%। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बेस इफेक्ट या प्राइस चेंज आप मतलब ऐसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन बेस इफेक्ट जब आप चेंज करेंगे तो भी आपका इस पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। मुझे यहाँ चेंज करना चाहिए था, आप देख लीजिएगा चेंज करके, फिर भी आपका इफेक्ट पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं 1 मिनट देख लेते हैं 2017 2018। ओके, तो पहले जब हमने 10 और 15 लिया था तो कितना हो गया था हमारा, 50% इंक्रीज हो गया था। अब हम 5 एंड 15 लेते हैं, अब देखते हैं कितना परसेंट इंक्रीज होगा। तो 5 हो यहाँ पर लेते हैं, बेस इफेक्ट मतलब ये बेस हम चेंज कर दिए, 5 कर दिया बेस ले जाकर। अब देखिए यहाँ पर तो 5 से 15 तक चेंज कितना हुआ, 10 चेंज हुआ। ठीक है, और बेस कितना होगा, 5 होगा एंड 100, तो 5 20 या 100 एंड 20 इंटू 10 हाउ मच, इट इज़ 200%। तो 15% से 200% क्यों इंक्रीमेंट दिखा रहा है, बिकॉज द चेंज इन द बेस। ओके, क्योंकि बेस डिक्रीज हुआ, तो अब आप समझ चुके होंगे, इसलिए मैंने पूरा आपको ठीक से समझाया इतना टाइम लेकर। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ्लेशन।
तो डिफ्लेशन वो होता है जब परसिस्टेंट मतलब फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवरऑल लेवल कॉल द डिफ्लेशन. ओके, so I hope you have understood. It is the persistent fall in the general price level in goods and services called the deflation. So what would be correct? It is a persistent fall in the general price level of a goods and service called the deflation. भी देख लेते हैं. कह रहा है it is a persistent recession in both the financial and real sector of economy. ये तो है ही नहीं. डिफ्लेशन इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, मतलब इन्फ्लेशन जब परसिस्टेंट इंक्रीज हो प्राइस लेवल में ओवरऑल जनरल प्राइस में, एंड डिफ्लेशन जब डिक्रीज हो प्राइस लेवल, तो फाइनेंशियल सेक्टर का तो उसमें बात ही नहीं है. फिर फर्स्ट कह रहे हैं इट इज अ सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, ये तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा. फिर डी कह रहे हैं कि इट इज अ फॉल इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो डिफ्लेशन नहीं होता है. ओके, ये इट इज नॉट कॉल्ड द डिफ्लेशन. इट यू कैन से रेट ऑफ फॉल in the inflation over a period of time can be you can say recession in the economy, but it is not also called the recession. Just remember that it would be not a deflation. There is no any I think terminology. First is you would be correct is the inflation called it. Okay, have you understood? Yes, so यही हमारा सी जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा. 72 कह रहा है इन इंडिया द इंटरेस्ट रेट ऑफ ऑन सेविंग अकाउंट इन ऑल नेशनलाइज कमर्शियल बैंक इज फिक्स्ड बाई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. नहीं, यूनियन फाइनेंस कमीशन नहीं. फाइनेंस कमीशन का तो और भी काम होते हैं ना, हमको पता है. फाइनेंस कमीशन का होता है कि टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो इसका तो ये तो मतलब कोई. फिर इंडियन बैंक एसोसिएशन नहीं, तो नन ऑफ दी अबव, क्योंकि हमको पता है जो सेविंग पर इंटरेस्ट रेट होता है वो डे मतलब चेंज होता रहता है. इट इज़ नॉट अ फिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल. और फिर सेविंग पर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो बैंक ईच बैंक मतलब बैंक टू बैंक डिफरेंट होता है, तो वही डिसाइड करते हैं बैंक कि कितना इंटरेस्ट रेट पे करना है. ठीक है, सेविंग पर. लैंडिंग का इंटरेस्ट रेट तो हमको पता है कि पहले मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट था, MCLR था. उससे पहले बेस रेट था डिसाइड करने के लिए. अब हमारा एक्सटर्नल बेंचमार्क है, तो ये सब लैंडिंग रेट डिसाइड करने के लिए. बट सेविंग का जो रेट होता है वो यूजुअली बैंक ही अपना खुद डिसाइड करते हैं कि कितना पे करेंगे, और वो बैंक टू बैंक डिफरेंट होता है. ओके, तो नन ऑफ दी अबव. 73 कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट कह रहा है द होलसेल, सेम क्वेश्चन रिपीट, मतलब ये क्वेश्चन आया था होलसेल अभी, मतलब आप देखेंगे तो आई थिंक 2017 के पहले. कह रहा है द होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI इन इंडिया इज अवेलेबल ऑन द मंथली बेसिस ओनली. ऑफकोर्स होलसेल प्राइस जो होता है वो मंथली बेसिस पर ही अवेलेबल होता है. और अगर आपको पता है तो जो हमारा होलसेल प्राइस है इंडेक्स जो है ये रिलीज़ किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमी एडवाइजर अंडर द कॉमर्स मिनिस्ट्री. ओके, तो आप इतना याद रखेंगे. ठीक है, फिर सेकंड कह रहा है कि एज कंपेयर टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर द WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स गिव लेस वेटेज टू द फूड प्रोडक्ट. तो ये भी हमारा सही है. अगर हम CPI की बात करें तो उसमें फूड प्रोडक्ट का वेटेज जो है वो 40% के अराउंड है. बट WPI में it is only 15% to weightage to the food product. And one more difference is in the CPI and WPI. most important difference कह सकते हैं कि CPI कंसीडर सर्विस टू, बट जो WPI है वो ओनली गुड्स को कंसीडर करता है गुड्स इन्फ्लेशन में. ठीक है, CPI हमको पता है NSO रिलीज करता है. WPI मैंने बता दिया आपको, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर. ठीक है, okay, 1 minute. I think I have yes, CPI is released by the NSO, but CPI industrial worker, remember that it is released by labor bureau. Okay, labor bureau. So industrial worker CPI is released by the labor bureau, but CPI at all India level you can say, or general CPI index is released by the national statistical office. Okay,
तो यहाँ पर हमारा दोनों सही था, बोथ आर करेक्ट। 74 number, with reference to India, consider the following. It is saying that first is saying that nationalization of banks, okay, then the formation of regional rural bank, adoption of village by bank branches, ये वही सेम आपको नहीं लिखता, लीड बैंक स्कीम, समथिंग लाइक दैट। तो मतलब आप मतलब इसे समझ सकते हैं थोड़ा सा। अब हम देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि which of the can be considered as a step taken achieve the financial inclusion। of course अगर आप देखेंगे तो ये सब हमारी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो बैंक हैं वो थोड़ा मतलब क्रेडिट प्रोवाइड करें रूरल सेक्टर को, स्मॉल इंडस्ट्रीज को, एंड दैट वाज द लॉफ्टी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। We know that first round of bank nationalization is conducted in 1969 and second round about the 1979 or 80, okay। तो इन फर्स्ट राउंड 14 बैंक नेशनलाइज्ड। फिर सेकेंड कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक। हमको पता है रीजनल रूरल बैंक का जो फॉर्मेशन हुआ 1975 में हुआ था, ओके। सो इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या था कि प्रोवाइड क्रेडिट टू द रूरल हाउस होल्ड और इन द रूरल सेक्टर और डेवलपमेंट ऑफ द रूरल सेक्टर और स्मॉल इंडस्ट्रीज। द सेम क्वेश्चन इज रिपीटेड, तो ये आप समझ सकते हैं। फिर अडॉप्टेशन ऑफ विलेज बाय बैंक, ये भी होगा, तो 1, 2 एंड 3 वुड बी करेक्ट, ओके। अगर हम यहाँ पर आरआरबी की बात करें, आरआरबी की बात करें जो 1975 या 76 में आप कह सकते हैं फॉर्म हुआ, तो इसमें अगर हम देखें तो शेयर जो होता है आरआरबी का शेयर होल्डिंग कैप जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है पार्ट, स्टेट गवर्नमेंट होता है एंड स्पॉन्सर्ड बैंक होते हैं। तो ये याद रखेंगे कि अगर कभी कहे यूपीएससी कि आरआरबी का 100% ऑन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, या वो कहे कि 100% ऑन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ये तीनों शेयर कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो डी हमारा सही हो जाएगा, जो मुझे बताना था एक्स्ट्रा मैंने वो बता भी दिया। फिर 75 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स। सेम थिंग्स वही है ना, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर मैंने बताया था लेबर ब्यूरो। तो अब आपको समझ जाना चाहिए क्या रिपीटिशन है और क्या जो एक्सप्लेनेशन आपको मैं देता हूँ उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। फिर 76 देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया इंक्लूड। तो कह रहे परचेस एंड सेल ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। ऑफकोर्स कमर्शियल बैंक कैन परचेस एंड सेल द सिक्योरिटीज ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। हमको पता है जो रूरल लेवल पर जो परचेस एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज इज प्रोवाइड बाय द बैंक ऑल्सो, मतलब बैंक ही प्रोवाइड करता है रूरल लोगों को। तो इट इज़ द यू कैन से फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। फिर एक्टिंग एज एग्जीक्यूटर ऑफ ट्रस्टी ऑफ विल्स। तो ट्रस्टी ऑफ विल्स मतलब आपकी डेथ के बाद आपका जो भी आपका पैसा है या फिर जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए आपके बेनिफिशरी में, आप बैंक को एज एग्जीक्यूटर अपॉइंट कर सकते हो। तो दोनों सही है, ये याद रखना, ठीक है। बाकी इसमें कुछ है नहीं। बाकी अगर कभी ऐसे यूपीएससी पूछे कि द कमर्शियल बैंक है जो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो वो लिखने वाली बात नहीं, वो को आपको एक कॉमन सेंस में आना चाहिए। या अगर यूपीएससी पूछे कि कमर्शियल बैंक है जा यू कैन से कि है जा रोल इन द जीडीपी ग्रोथ, ऑफ कोर्स दे हैव रोल, ओके। तो इसे ऑप्शन जब फ्रेम करे तो आपको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है, इसीलिए तो कहते हैं कि प्रीलिम्स के पहले एक बार मेंस हो जाए तो बेनिफिट थोड़ा देता है। कह रहा कि विथ रेफरेंस टू द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कंपनीज जो NBFC है इन इंडिया कंसीडर द स्टेटमेंट्स, ओके सॉरी। फर्स्ट कह रहा है कि दे कैन नॉट इंगेज इन द एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्यों नहीं, दे कैन इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके।
there is no any issue in the investment of security by the NBFC. Okay, so it is not a, you can say कि there is no any restriction on the NBFC. सेकेंड कह रहा है दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट लाइक अ सेविंग अकाउंट. सो डिमांड डिपॉजिट में कौन कौन से अकाउंट होते हैं हमको पता है. कासा याद रखिए, कासा. कासा मीन yes सेविंग अकाउंट एंड इन डिमांड डिपॉजिट आल्सो है करंट अकाउंट. कासा मीन्स करंट अकाउंट, सी ए मीन्स करंट अकाउंट, एस ए मीन्स सेविंग अकाउंट. ओके, एंड तो दे कैन नॉट एक्सेप्ट द डिमांड डिपॉजिट, दे ओनली एक्सेप्ट NBFC कैन ओनली एक्सेप्ट द टाइम डिपॉजिट. टाइम डिपॉजिट में कौन कौन से अकाउंट आते हैं? मेनली रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है, मतलब एवरी मंथ आप 100 रुपये जमा कर रहे हो तो कुछ दिन बाद उसकी मैच्योरिटी होगी तो आपको उसको इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा. एंड रिकरिंग डिपॉजिट एंड वी नो दैट फिक्स डिपॉजिट, तो उसको आप फिक्स कर देते हो 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो वो भी ले सकता है. तो आप ये याद रखेंगे डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते, टाइम डिपॉजिट ले सकते हैं. तो यहाँ पर ये 2 सही हो जाएगा हमारा. ठीक है. फिर 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो CRR, जो कि अलाउड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अंडर द RBI एक्ट. और एक बात याद रखिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है he can keep CRR at any amount, मतलब 100% even can Reserve Bank of India can allow the CR or can force the CR. तो ये आप याद रखें कि there is no limit to fix the CRR on the Reserve Bank of India, but generally कभी भी RBI 100% CR नहीं करेगा, because we know that our banking system in the economy work on the fractional reserve banking भी है. fractional reserve banking means some amount of deposit bank have to keep as a CRR or SLR, means these are the reserve. Okay, so some amount bank have to keep as a reserve, and after keeping this reserve the bank can give the loan rest of the amount. But if we talk about the full reserve banking, full reserve means the whole deposit bank can not give the loan, तो we have the fractional reserve banking. ओके, तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया. अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था और आपको यह पता होना चाहिए. तो कह रहे हैं कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस इंक्रीज इन CRR. अगर CRR इंक्रीज कर रहा है तो बैंक के पास व्हाट द अमाउंट द लेफ्ट टू द बैंक्स टू गिव द लोन्स वुड बी डिक्रीज. तो द बैंक can make the advance would be decrease. Okay, तो बैंक can increase the interest rate on that loans. Okay, अब देखते हैं. The commercial bank will have less money to lend. Of course ये would be correct. अगर CRR increase हो रहा है तो बैंक have less money to lend, and CRR and SLR कोई भी increase हो रहा है तो बैंक की lending जो फंड होगा वो डिक्रीज होगा. एक सिंपल में आप समझ सकते हैं. बी कह रहा है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल हैव लेस मनी टू लैंड. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, कि उसके पास तो और ज़्यादा हो जाएगा. पहले CRR 4% आता था, अब 5% आता है, तो ज़्यादा हो गया ना उसके पास. तो ये करेक्ट है. द यूनियन गवर्नमेंट विल हैव लेस मनी टू लैंड. भाई यूनियन गवर्नमेंट का तो इसमें कोई वही नहीं है ना यार, और यूनियन गवर्नमेंट किसको लोन देता है, तो ये का इनकरेक्ट हो. फिर द कमर्शियल बैंक विल हैव मोर मनी टू लैंड, ये तो पूरा अपोजिट हो गया. फिर 79 देखते हैं. ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है, इट इज अ, यू कैन से, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है, इनका जो आप कह सकते हैं कि फंक्शन होता है वो बिटवीन द कंपनी एंड पार्टनरशिप, मतलब ये बीच में होते हैं कंपनी एंड पार्टनरशिप के. सो द बोथ यू कैन से कि द कंपनी सम रेगुलेशन एंड सम यू कैन से स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी एंड सम स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टनरशिप व्हेन इंक्लूडेड इट बिकम द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. ओके, तो जो पार्टनर्स होंगे इसमें उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है कंपनी के लिए.
ये आप ऐसे समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो LLP होता है वो एक एंटिटी वर्क करता है, वो अपने नाम पर लोन ले सकता है, कम इसमें वो अपने नाम पर कोई शेयर एक्वायर कर सकता है, और ही कैन आल्सो डिपॉजिट इन हिज नेम, ओके, कंपनी, ओके। तो हम देखते हैं, कह रहा है कि ये कह रहा है कि यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा, याद रखिए। फर्स्ट कह रहा है कि पार्टनर शुड बी लेस देन 20, कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट, ओके, रिमेंबर दैट देयर इज नो लिमिट ऑन अ नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ पर पार्टनरशिप नहीं लिमिटेड हो रही है, यहाँ पर लाइबिलिटी लिमिटेड हो रही है, ओके। लाइबिलिटी मतलब जो वो आपकी जो लाइबिलिटी है, जो लोन है, ये सब लिमिटेड है कि कितना पार्टनर्स पे करेंगे अगर वो फेल होता है तो वो लिमिटेड है। यहाँ पर पार्टनरशिप तो अनलिमिटेड होंगे, तो ये वुड बी इनकरेक्ट। फिर कह रहे हैं पार्टनर्स एंड मैनेजमेंट नीड नॉट टू बी सेपरेट, ऑफ कोर्स दे नीड नॉट टू बी सेपरेट, कि पार्टनरशिप एंड मैनेजमेंट सेपरेट हो। फिर कह रहे हैं इंटरनल गवर्नेंस मे बी डिसाइडेड बाय द म्यूचुअल एग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स, ऑफ कोर्स। फिर देयर इज अ कॉर्पोरेट बॉडी, सॉरी, इट इज़ अ कॉर्पोरेट बॉडी विथ परपेचुअल सक्सेशन, ये भी हमारा सही हो जाएगा। परपेचुअल सक्सेशन मीन्स आपके बाद कोई और के पास चली गई, आपके फिर उसके बाद किसी और के पास, तो ये लगातार, मतलब कंपनी तो लगातार रहेगी, बस सक्सेसर चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो ABC करेक्ट था हमारा, ये इनकरेक्ट था, तो नॉट करेक्ट ही पूछा है, तो उस हिसाब से हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है इन द पैरेलेंस ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट द टर्म बियर डिनोट्स। तो अगर आपने थोड़ा भी सुना होगा, तो बियर हो गया या बुल जो वर्ड होते हैं, दे डिनोट टू द शेयर मार्केट, दे आर रिलेटेड टू द शेयर मार्केट। तो जब बेयरिश शेयर मार्केट होते, व्हेन देयर इज अ बेयरिश शेयर मार्केट, दिस मीन्स, और यू कैन एक्सपेक्ट दैट द मार्केट इज गोइंग टू, और शेयर मार्केट और शेयर द प्राइस ऑफ द शेयर इज गोइंग टू फॉल इन द रिसेंट फ्यूचर if there is a bearish market, okay, और bearish you can say bearish सिस्टम चल रहा है, या बेरिश का जो आपको कनोटेशन मिल रहा है, सो इट कनोट दैट कि इन द फ्यूचर द प्राइस ऑफ द शेयर विल बी फॉल और डिक्रीज। बट इफ देयर इज अ बुलिश मार्केट, सो द इन्वेस्टर हैज़ अ optimistic you can say character or optimistic mindset that the market is going to rise or the share price is going to rise in the recent future। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो बेरिश मतलब शेयर मार्केट डाउन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आ इन्वेस्टर हु फील्स दैट द प्राइस ऑफ पार्टिकुलर सिक्योरिटी इज गोइंग टू फॉल, ऑफकोर्स यही तो मैंने बताया था ना कि बेरिश मतलब क्या है, कि द प्राइस ऑफ पार्टिकुलर सिक्योरिटी और पार्टिकुलर शेयर इज गोइंग टू फॉल मीन्स इट इज द बेरिश, ओके। फिर कहते हैं आ इन्वेस्टर हु एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ पार्टिकुलर शेयर वुड राइज, तो इसमें इट इज अ बुल, ओके, बुलिश, ओके। फिर ये कह रहे हैं कि आ शेयर होल्डर और बॉन्ड होल्डर हु हैज़ एन इंटरेस्ट इन अ कंपनी फाइनेंशियल और अदरवाइज, ये तो कुछ है ही नहीं। अगर शेयर होल्डर एंड बॉन्ड होल्डर हु हैज़ इंटरेस्ट इन अ कंपनी और फाइनेंशियल और अदरवाइज, तो वो दे कॉल द इन्वेस्टर्स टू दैट कंपनीज, और दे आल्सो कैन कॉल द क्रेडिटर टू दैट कंपनीज, तो देयर इज नॉट एनी। फिर कह रहे हैं एनी लेंडर वेदर बाई अ बैंक और लोन और बाई, ये तो है ही नहीं। फिर 81 देखिए, ये कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन, इस पे क्वेश्चन इस ईयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन इन इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जिससे अगर आपको प्रॉब्लम है, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि अगर आपको शेयर मार्केट में प्रॉब्लम है तो आप किसके पास जाओगे, आप सेबी के पास जाओगे। बट आपको अगर बैंकिंग सिस्टम से या ऑनलाइन पेमेंट रिलेटेड देयर इज एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग regarding the online payment related or any you can say regarding any problem or any fraud, so you will file the complaint on
banking ombudsman. It will be require, he will be inquire your complaint and solve the problem. Okay, तो यहाँ पर फर्स्ट कह रहा है कि द बैंकिंग ओम्बड्समैन इज अपॉइंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा है, ये आप याद रखेंगे. ओके, तो यस, द बैंकिंग ओम्बड्समैन इज अपॉइंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड करंटली देयर इज a 22 ombudsman all over the India. Okay, so they are appointed by the, and even the chairman, you can say banking ombudsman head appointed by the Reserve Bank of India. तो ये would be correct. फिर सेकेंड कह रहा है द बैंकिंग ओम्बड्समैन कैन कंसिडर कंप्लेंट्स फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैविंग अकाउंट इन इंडिया. इफ एनी वन हैज अकाउंट इन इंडिया, द बैंकिंग ओम्बड्समैन has a responsibility to consider that complaint. It is a simple, you can say, statement. Okay, फिर सी कह रहे हैं द ऑर्डर पास बाय द बैंकिंग ओम्बड्समैन आर फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टी कंसर्न. ऐसा कुछ भी नहीं है. इफ यू जस्ट यू थिंक, इफ यू हैव a 1 crore fraud, okay, you face the 1 crore fraud. Now you go to banking ombudsman and banking ombudsman says कि no, it is your wrong and it will be not inquiry conducted, and no inquiry will be conducted and your money will be not returned. Now you can go to the High Court and Supreme Court, or even in the banking ombudsman there is a appellate authority. Means after the banking ombudsman there is a appellate authority who will see your complaint if the banking ombudsman fail to you can say fail to solve your problem. ओके, सो सी वुड बी इनकरेक्ट, और नॉट करेक्ट ही पूछा है तो उस हिसाब से हमारा सी करेक्ट हो जाएगा. फिर ये करें द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंकिंग ओम्बड्समैन इज फ्री ऑफ कॉस्ट. यस, ये बिल्कुल फ्री होती है. ठीक है, ये याद रखेंगे कि बैंकिंग ओम्बड्समैन नो चार्ज एनी फी टू प्रोवाइड द सर्विस टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. फिर 82 क्या कह रहा है देख लीजिए. ये कह रहा है which of the following term indicate a mechanism used by commercial bank for the providing credit to the government. कमर्शियल बैंक को क्रेडिट प्रोवाइड करना है गवर्नमेंट को, और ये क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ इससे पहले एक्सप्लेनेशन में. मुझे पता नहीं था बट मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था और उसमें ये मैं बता चुका हूँ आपको. ठीक है, और ये सेम क्वेश्चन EPFO में UPSC ने 2023 में पूछा. Now you can expect कि how much important are the PYQs. Now it is your chance and your responsibility to revise the PYQ more than 5 to 6 times. Okay. Which of the following term indicate a mechanism by the commercial bank for providing credit to the government. Now you just think that कि how commercial bank are providing the credit to the government. So if you will see, there is a requirement of SLR that bank have to keep as a reserve, in the case of gold or government securities. So in this scenario the commercial bank is providing the credit to the government by the buying the security of the government. Okay, so that will be called the SLR, statutory liquidity ratio. तो दैट वुड बी करेक्ट. अगर हम इस सारे स्टेटमेंट की बात जैसे हमेशा करते हैं इसमें करें, तो अगर कैश क्रेडिट रेशियो, इसको पहली बार कैश क्रेडिट रेशियो ऐसा कुछ है नहीं. अगर हम कैश रिजर्व रेशियो की बात करें, कैश रिजर्व रेशियो की बात करें, तो इट इज़ नॉट अ क्रेडिट विच आर प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट. इट इज़ क्रेडिट, और यू कैन से इट इज़ अ रिजर्व which transfer from the commercial bank to the RBI, and RBI even not pay any interest rate on the CRR. And I have told 100 times to you, CRR can be any amount or any limit can be fixed by the RBI, and CRR also has a RBI Act give the power to RBI and to impose the CRR on the commercial bank. So these point you have to remember in the all sense. तो फिर कहते हैं डेप्ट सर्विस ऑब्लिगेशन, ऐसा कुछ है ही नहीं. नाउ फिर कह रहे हैं कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी LAF.
Okay, so it is a window under the RBI, not under the commercial bank. So if RBI is providing the fund to the bank, fund to the government or loan to the government, that would be considered under the base and means advance. Okay, so it would be not by the commercial bank, and D would be correct. Statutory liquidity ratio by buying the government security by the commercial bank. ओके फिर 83 देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज इकोनॉमी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द अर्लीस्ट इवेंट टेक प्लेस, ऑल थिंग्स इन दिस आई हैव डिस्कस्ड विद द ईयर टू यू। मैं हर बार आपको ईयर क्यों बताते चलता था, बिकॉज आई न्यू दैट देयर वाज ए वन क्वेश्चन व्हिच आस्क्ड बाय द और मेनी टाइम यूपीएससी हैज आस्क्ड इन सीडीएस, अभी हम देखेंगे सीडीएस एपीएफ, दे हैज आस्क्ड द क्रोनोलॉजी। सो क्रोनोलॉजी समझिए आप, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, अगर इफ़ यू नो दैट नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनी टेक प्लेस इन 1956। ओके, इंश्योरेंस मतलब लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज LIC। फिर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, फर्स्ट राउंड ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक टेक प्लेस इन द वी नो दैट इन 1969। ओके, फिर सेइंग दैट इनेक्टमेंट ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वी नो दैट 1949, इंट्रोड्यूस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1951। तो आप बताइए फर्स्ट कौन था, अर्लीस्ट कौन है? अगर हम देखें तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो यही हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर ये जो दिया गया है ये शेयर मार्केट इंडेक्स दिए गए हैं डिफरेंट कंट्रीज के, आपको याद रखना है, सीरियसली में याद रखना है। यूपीएससी कैन आस्क इफ एनी वन ऑफ दिस वर इन द न्यूज, सो इफ यू हैव नॉट read in the news, you just remember these are index and related countries just in one associated terminology. ओके, तो ये ऑफकोर्स यहाँ पर नॉट पूछा है, तो नॉट से पहले हम यस देखेंगे जो हमको याद रखना है। सो 84 में हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए ये कह रहा है कि जापान, याद रखिए जापान का जो है वो आपका जो स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स है वो निक्कीज। ओके, जापान का क्या है? निक्कीज है। ओके, फिर यहाँ पर सिंगापुर जो दिया गया है स्कॉम्प, ये स्कॉम्प का नहीं है, आप याद रखेंगे, ये चाइना का है, संघाई स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। तो आप ये याद रखेंगे जो स्कॉम्प है या ये जो कॉम्प जो भी पढ़ते हूँ आप देख लीजिएगा, ये है हमारे संघाई का स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। यूके का याद रखेंगे FTSE है, USA का याद रखेंगे नस्टाक है। ओके, तो आप ये सब याद रखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट पर देखते हैं 85। व्हाट डज S&P 500 रिलेट टू? ये आपको ऑनलाइन में ही याद रखना पड़ेगा, इसमें कोई वो मैं बता नहीं सकता। तो आप याद रखेंगे कि एन इंडेक्स ऑफ लार्ज स्टॉक ऑफ लार्ज कंपनीज, तो इट इज अ इंडेक्स ऑफ स्टॉक ऑफ लार्ज कंपनीज, तो डी वुड बी करेक्ट। ओके, फिर देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो, और मैंने आपको कितनी बार इसके बारे में बता दिया है प्रीवियस डिस्कशन में, आप सोच भी नहीं सकते। कह रहा है द नेशनल हाउसिंग बैंक वाज सेट अप इन द इंडिया एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो अब नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में आप देखेंगे तो इट इज़ सेटअप, ओके, यू कैन से इट इज़ अ सेटअप इन 1988 एज अ सब्सिडरी ऑफ RBI, एज अ सब्सिडरी ऑफ RBI। ओके, और एक बात याद रखना, लाइक अ नबार्ड नेशनल हाउसिंग बैंक आल्सो नॉट डू डायरेक्ट लैंडिंग, ये डायरेक्ट लैंडिंग नहीं करता, इट डू रिफाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ओके, एंड बट एक बात याद रखना कि ये सब्सिडी तो RBI का सेटअप हुआ था, बट इन 2019 द शेयर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक कंप्लीटली ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो शेयर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक कंप्लीटली ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाउ इट इज कंप्लीटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो आप ये समझ सकते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर सेटअप हुआ था, बट अगर इस टाइम पर देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अब आप बात करें कि अगर नेशनल हाउसिंग बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आ गया
तो जब हाउसिंग जितने भी अब NBFCs हैं वो किसके द्वारा रेगुलेट की जाएंगी, तो याद रखना वो RBI रेगुलेट करेगा। पहले कौन रेगुलेट करता था, नेशनल हाउसिंग बैंक करता था, बट जब वो ट्रांसफ़र हो गया गवर्नमेंट के अंडर तो अब RBI डायरेक्टली रेगुलेट करता है हाउसिंग NBFC को। ओके, फिर 87 देख लीजिए, ये कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट में कह रहा है द रेपो रेट इज द रेट एट विच अदर बैंक बोरो फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आप इसमें क्या गलत कर दोगे, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है कि रेपो रेट के अंडर हमको पता है कि द शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर सेकेंड इज सेइंग दैट अ वैल्यू ऑफ 1 फॉर अ गिनी कोफिशिएंट in country implies that there is a perfectly equal income for everyone its population। ये इनकरेक्ट है बट हम इसको समझेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। इवन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद क्या रखना है, आप ये गिनी कोफिशिएंट किससे रिलेटेड है ये याद रखेंगे। तो ये इट इज़ रिलेटेड टू द इनकम इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। तो फर्स्ट आपका ये क्लियर हो गया। क्लियर हो जाने का मतलब माइंड से नहीं क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो गिनी कोफिशिएंट रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ और इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी एंड इट रेंज, गिनी कोफिशिएंट आप कह सकते हैं इट रेंज फ्रॉम द 0 to 1। ओके, तो 0 to 1 मीन्स 0 इज मीन्स देयर इज द परफेक्ट इक्वलिटी इन द कंट्री। ओके, एंड 1 मीन्स देयर इज द परफेक्ट इनइक्वलिटी इन द कंट्री। और ओके, तो ये आप याद रखना, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि 1 कह रहा है कि परफेक्ट इक्वलिटी की बात कर रहा है, इक्वल इनकम, बट 1 में से 1 का मतलब है कि परफेक्ट इनइक्वलिटीज है, तो यहाँ पर ओनली 1 आर करेक्ट। तो आप उतना याद रखेंगे, बाकी तो कोई ज़रूरत नहीं। फिर 88 देखिए, 88 आप देख सकते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है सेंसेक्स इज अ बेस्ड ऑन 50 ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टॉक अवेलेबल ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको अब ये जो मैं बताऊंगा आपको याद रखना है, उतना ही याद रखना है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप ये याद रखेंगे कि जो सेंसेक्स है वो ओनली 30 लार्ज कंपनीज को इंक्लूड करता है, ओनली 30 लार्ज कंपनीज। फिर इट इज़ अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इट इज़ अ सेंसेक्स अंडर द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, सो फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, फिर ये कह रहा है कि फॉर कैलकुलेटिंग द सेंसेक्स ऑल द स्टॉक आर असाइंड प्रोपोर्शनल वेटेज। यस, प्रोपोर्शनल वेटेज में ही जो स्टॉक होते हैं वो असाइन होते हैं। मीन्स दैट कि इफ एनी कंपनीज स्टॉक हैज ग्रेट डिमांड इन द मार्केट इट विल बी कंसिडर more weightage in the sensex, and if any company is loss making and its share are falling so it will be has a less weightage in the sensex। तो 2 would be correct। फिर कहते हैं न्यूयॉर्क स्टेक, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। तो आप ये पहली बात आप ये याद रखेंगे कि जो एम्स्टर्डम का जो स्टॉक एक्सचेंज है it is the oldest stock exchange in the world, it formed in 1602। अच्छा, 1602 ईयर को याद करके आपको क्या याद आता है, it is the same year when you can say Dutch East India Company formed, Dutch East India Company formed in the 1602। CDS में ये क्वेश्चन आया हुआ कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म हुई थी, कंपेरिजन उन्होंने पूछा था ईस्ट इंडिया कंपनी से डच ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर हमारा एम्स्टर्डम हो जाएगा, यहाँ पर 30 हो जाएगा 50 के अलावा, तो 2 वुड बी ओनली करेक्ट इन दिस। ओके, और हम अगर इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इंडिया का जो स्टॉक एक्सचेंज इट इज़ द ओल्डेस्ट इन द एशिया। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। तो ओनली 2 आर करेक्ट। अब 89 देखते हैं हम। ये कह रहा है कि इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी मैनेज बाय इंडियंस फाउंडेड इन 1881, द नेम वाज। तो आप याद रखेंगे दैट नेम वाज द अवध कमर्शियल बैंक। द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी वाज अवध कमर्शियल बैंक व्हिच ओन्ड बाय द इंडियंस। ओके, एंड इफ वी टॉक अबाउट द पंजाब नेशनल बैंक
सो हमको पता इट फॉर्म अराउंड द 1895। ओके, बाकी तो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर कह रहा है डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर्स ऑफ कंपनी आर इट्स, जो डिवेंचर होल्ड करते हैं, इफ़ यू आर होल्डिंग द डिवेंचर ऑफ एनी कंपनी, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट यू आर द क्रेडिटर्स ऑफ दैट कंपनी। शेयर होल्डर तो जो शेयर होल्ड करेंगे उनको कहेंगे। डेप्टर्स, डेप्टर्स मीन्स द कंपनी इफ हैज़ गिवन टू एनी वंस लोन, अगर कंपनी ने किसी को लोन दिया है, सो इफ़ यू हैव टेकन द लोन फ्रॉम द कंपनी यू विल बी डेप्टर्स ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर तो आप जानते हैं क्या होता है, तो डिवेंचर आप याद रखेंगे क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर दैट they are not concerned with the management and regulation of the company. Okay, and debenture is the secured creditors of the company, they are the secured creditors of the company, they are not concerned with the management and regulation of the company, means you can say opposite to the shareholder, and debenture is the something similar to the bond. Okay, so you have remember this. फिर 91 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये कह रहा है कि विच ऑफ दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ द इंटरनल डेप्ट। इंटरनल डेप्ट मीन्स द मनी रेज फ्रॉम द कंट्री और द फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट इज कॉल्ड द इंटरनल डेप्ट ऑन द कंपनी और गवर्नमेंट। ओके, सो मार्केट बोरोइंग ऑफ कोर्स वुड बी कंसिडर्ड एज अ इंटरनल डेप्ट। ट्रेजरी बिल इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, it borrow the market, it borrow from the domestic market and the country's money, so it is also considered the internal debt. Then special securities issued by the issued to RBI, if government is issuing the you can say government is issuing the security or a security to the RBI for the loan, it is also considered from the internal debt because RBI is the country's bank. Okay, तो यहाँ पर डी हमारा सही हो जाएगा 91 में, इंटरनल डेप्ट में ये सब हमारे आते हैं। फिर 92 देखिए, ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। फर्स्ट कह रहा है कि इट इज़ अ बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यस इट इज़ अ बैंकर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ। ओके, तो फर्स्ट वुड बी करेक्ट। ओके, फिर फर्स्ट वुड बी करेक्ट। सेकंड करें इट फॉर्मुलेट एंड एडमिनिस्टर मॉनेटरी पॉलिसी, ऑफ कोर्स इट एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियाज मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑफ कोर्स करेक्ट। फिर इट हैंडल्स द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स सेंट्रल बैंक वुड हैंडल द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह या आरबीआई के थ्रू ही तो जो गवर्नमेंट है वो लोन उठाती है। आरबीआई इज द इशूअर ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो आरबीआई इशू द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, डेटेड सिक्योरिटीज, स्टेट डेवलपमेंट लोन ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, सो इट हैंडल्स द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो सी वुड बी करेक्ट। 93 सेंसेक्स के बारे में सेम क्वेश्चन आप समझ सकते हो ये, तो ये कह रहा है अ राइज इन सेंसेक्स मीन्स क्या होता है। एक फर्स्ट कह रहा है कि अ राइज इन सेंसेक्स मीन्स अ राइज इन द प्राइस ऑफ शेयर ऑफ ऑल कंपनीज, ओनली 30 कंपनीज आर इन सेंसेक्स, तो हाउ ऑल कंपनीज कैलकुलेट, फर्स्ट इज रॉन्ग। B sentence a rise in the price of share of all companies registered with the National Stock Exchange. Remember that if in the 30 companies only 29 companies share is rise, even in this scenario also Sensex will be rise. So it is not something कि all company का register share rise ही होगा, कुछ company का rise भी होगा तो overall share price rise होगा, तो 2B is also incorrect. सी देखते हैं, इसलिए मैं सारे ऑप्शन कह रहा हूँ कि फिर से अगर रिपीट हो तो आप बेटर पोजीशन में रहो। फिर सी कह रहा है एन ओवरऑल राइज इन द प्राइस ऑफ शेयर ऑफ अ ग्रुप ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड विद द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो शेयर इंक्लूड है उनमें ओवरऑल प्राइस, मतलब कुछ प्लस में है कुछ माइनस में है, बट ओवरऑल
मतलब मान लीजिए 5 कंपनी आर इन द 5 कंपनी शेयर आर इन द माइनस, बट 25 कंपनी आर शेयर इन द प्लस, तो ओवरऑल दे हैव प्लस। ओके, तो सी वुड बी करेक्ट। डी कह रहे हैं अ राइज इन द प्राइस ऑफ शेयर ऑफ ऑल कंपनी बिलोंगिंग टू अ ग्रुप ऑफ कंपनी रजिस्टर्ड विद द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नहीं, ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑल कंपनी ने ओवरऑल या एवरेज राइज होता है। फिर ग्लिट एज्ड मार्केट मीन्स, तो आप ये सिंपल वर्ड में याद रखें, ग्लिट एज मार्केट समथिंग लाइक अ ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल, तो मार्केट ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वन वर्ड में याद रखना है, नथिंग मोर। ओके, 95 is saying that from the balance sheet of a company it is possible to, how much you can know, this question is also important, please remember. So you can judge the extent of profitability of the company, of course you can judge, but we will hold this statement. Okay, फिर कह रहे हैं assess the profitability and size of the company, तो ये से ज़्यादा सही जो है वो बी है, तो हम इसको होल्ड रखेंगे। फिर सी कह रहा है कि डिटरमाइन द साइज कंपोजिशन ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, तो बी से ऑफकोर्स इट इज अ मच बेटर इज सी। ओके, एंड डी इज डिटरमाइन द मार्केट शेयर डेप्थ एंड एसेट ऑफ कंपनी, तो सी इज द मोस्ट बेटर ऑप्शन you can expect from the balance sheet of a company. So remember that it also include the composition of the asset, liability. Okay, so liability and composition of asset both are in the balance sheet you can see. Okay, फिर 96 देखते हैं। ये कह रहा है कि द अकाउंटिंग ईयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज, देखिए 2021 से इन बिफोर द 2021 द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज जुलाई टू जून। ओके, बट now from the 2021 one committee has formed, you need to remember that Bimal Jalan committee, and it recommend that कि RBI need to coincide with the financial year of the government of India. So what is the financial year of the government of India currently? It is the April to March. Okay, so I had told you the possibility to everything. Okay, now give me 1 minute.